us today. May God bless you as you worship the Lord today. The theme for our worship today is the source of truth and purity is in the heart. Today is the fourth Sunday after Pentecost. Truly the scripture reminds us as we worship the Lord with the purpose to glorify Lord Jesus Christ. Paul's letter to Romans chapter 12 verse 1 says, "Let us present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our spiritual worship." Lord, help us as we worship the Lord. And as the Lord has been blessing us so much as we worship the Lord, may God continue to bless us as we adore and praise His name. Almighty God, who alone can order the unruly desires of human hearts, give us grace to put away all impure thoughts and untrue words, and make us holy as you are holy, and true as you are true. To Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. The responsive reading has been taken from the book of Psalms, chapter 34, verses 8 and 9, and 11 to 14. Please respond by saying, "Make me a clean heart, O God." O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. O fear the Lord, you His saints, for those who fear Him have no lack. Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. What man is there who desires life and loves many days, that he may see good? Keep your tongue from evil, and your lips from speaking deceit. Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. The first English reading is taken from the book of Genesis, chapter 6, verses 5 to 8. When the Lord saw
how wicked everyone on earth was, and how evil their thoughts were all the time, he was sorry that he had ever made them and put them on the earth. He was so filled with regret that he said, I will wipe out these people I have created, and also the animals and the birds, because I am sorry that I made any of them. But the Lord was pleased with Noah. May the Lord bless to us the reading of His holy word. May His name be honored and praised. The epistle lesson is taken from Ephesians chapter 4, verses 17 to 25. Paul teaches that discipleship to Christ involves a transformation of mind and heart. Now this I affirm and testify in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do. In the futility of their minds, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Due to their hardness of heart, they have become callous and have given themselves up to licentiousness, greedy to practice every kind of uncleanness. You did not so learn Christ, amusing that you have heard about him and were taught in him, as the truth is in Jesus. Put off your old nature, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new nature created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Therefore, putting away falsehood, let everyone speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Here ends the reading. Thanks be to God. परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। The Gospel reading has been taken from the Gospel according to Matthew, chapter 5, verses 27 to 30 and 33 to 37.
You have heard the commandment that says, You must not commit adultery. But I say, anyone who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. So if your eye, even your good eye, causes you to lust, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your hand, even your stronger hand, causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. You have also heard that our ancestors were told, You must not break your vows. You must carry out your vows you made to the Lord. But I say, do not make any vows. Do not say, By heaven, because heaven is God's throne. And do not say, By the earth, because the earth is his footstool. And do not say, By Jerusalem, for Jerusalem is the city of the great king. Do not even say, By my head, for you can't turn one hair white or black. Just say a simple yes, I will, or no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all those who live in this city, for removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industries, commerce, for all workers, skilled and unskilled, and for all those who defend our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For teachers, students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the minds and hearts of others. Lord, in your mercy, hear our prayer. For those who are suffering, the poor and hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick and the dying. And we remember especially for people who are dying because of coronavirus. We pray for our nation and nations of this world that Lord would heal us and remove such pandemic out of the face of this earth. And especially remembering the scientists, that they would invent the vaccine to heal the mankind. Also, we remember the paramedical workers, the nurses, the doctors. The Lord would give them strength to heal people. We also remember in the bereaved families, those who lost their dear one, and for all who helped them. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all whom authority is entrusted in this and other countries, and especially for our President, the Prime Minister, the Lieutenant Governor of this state, and for all who have power over other people. Lord, in your mercy, hear our prayer. For the unity of all Christian people and for their witness and service in the world. Lord, in your mercy, hear our prayer. For your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for P.C. Singh, our moderator, Dharmaraj, moderator, Church of South India,
Joseph, Metropolitan of Marthoma Church, for Varis, our Bishop, for Timothy, Jayakumar, Arvind, our Presbyter, and our lay reader, Ashish Samuel, and Anurag Smith, and all other ministers of your church, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, hear our prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Hallowed be thy name. As in heaven, so on earth, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread. Hallowed be thy name. And forgive us, Father, all our debts. Hallowed be thy name. As we forgive all our debtors. Hallowed be thy name. And lead us not into temptation. Hallowed be thy name. But deliver us from all evil. Hallowed be thy name. For thine is the kingdom, power, and glory. Hallowed be thy name. And forever and ever. Hallowed be thy name. Amen, amen, it shall be so. Hallowed be thy name. Amen, amen, it shall be so. Hallowed be thy name. The Lord Jesus said, "The Lord our God is the only Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." This is the first commandment. And the second is this: love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let's all say together the prayer of confession. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done, and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. As this is the prayer of confession, and as we pray together, the Bible tells us that we must be in peace
with each other and with Lord Jesus Christ. And let us share the peace of the Lord with each other as we worship Him. We are the body of Christ. In the one Spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always be with you. His love, His mercy brightens on the path in which we roam. Bliss He wakes and woe He lightens. God is wisdom, God is love. Chance and change are busy ever, man decays and ages move. But His mercy waileth never. God is wisdom, God is love. In the hour that darkness seemeth, will His changeless goodness prove. Through the gloom His brightness streameth. God is wisdom, God is love. He with earthly cares entwineth, hope and comfort from above. Everywhere His glory shineth. God is wisdom, God is love. Amen. Good morning, friends. Today, the theme for our meditation is the source of truth and purity is in the heart. This has a direct reference to the chapter 5 of St. Matthew's Gospel, which is also known as the Beatitudes chapter. Today is the fourth Sunday of Pentecost. As you would all recall, there are 3 seasons of the Christian calendar, namely Advent, which records the birth of Christ, consisting of 4 Sundays. The season of Lent, consisting of 5 Sundays, culminating with His crucifixion, His resurrection, and His ascension. And then a period of 25 weeks of Pentecost, starting from the day when the Holy Spirit was poured out as the great gift from God to humanity. I would like to focus particularly on the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verses 27 to 30, which was read out to us this morning. You would recall that 2 Sundays back we heard about the Beatitudes, which is the beginning of this chapter. And last Sunday we heard about hatred and anger, which we are to control. And today we talk about specifically 2 things. One is adultery and the other is divorce. But I shall be referring mostly to the sin of adultery and what Jesus meant and how He interpreted the Mosaic law and pointed out the fallacy in the argument of the Pharisees. If you see in this chapter, Jesus is actually challenging the authority and the teachings of the Pharisees. And one of the main reasons that Jesus came down was
to bring a paradigm shift in the thinking of the Pharisees and their teachings, because they interpreted the law of Moses primarily in a very rigid manner, whereas Jesus gave a deeper understanding and went beyond what was there written in the book of law. We all know that one of the 10 commandments is, "Thou shalt not commit adultery." So let us look at this word adultery a little more closely and what Jesus meant in his teaching. In fact, throughout this chapter, Jesus has a face-off with the scribes and the Pharisees of that time, who definitely came and listened to him and dwelt on every word he said, trying to find fault in what he was saying and what he was teaching. This face-off comes very mildly at first, if you read the chapters 5 and 6 of the Matthew's Gospel. But when you look at chapter 23, there is a great shift in the way Jesus spoke while addressing the Pharisees on the wrongs that they were doing. To name a few, it's in fact a direct attack on the scribes and the Pharisees. He told them that you preach but you do not practice, and you place a heavy burden on the shoulders of people which you yourselves cannot bear, and you want to be with your deeds in the sight of men so that you get salutations in the marketplace, and you shut out the kingdom of God from humanity. He calls them a brood of vipers and he calls them blind guides, swearing by the temple, and they tithe mint and dill and cumin seeds, whereas neglect the heavier and weightier matters. They are like a cup which is clean from the outside, but inside they are filled with extortion and rapacity. Contrast that to what Jesus says in chapter 5, which is also known as the Sermon on the Mount. Why did this face-off come about? Through the teachings in chapter 5, Jesus is actually telling the Pharisees that their teachings are entirely incorrect. Let me read what was read out to us in the morning just to refresh our memories. Verse 27 says, "You have heard that it was said, 'Do not commit adultery.' But I say to you that everyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes to sin, pluck it out and throw it away. It is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better that you lose the whole body rather than go to hell." So in this, there is a cause and there is an effect, and there is a punishment. So let us look at this a little more deeply. In Judaism, that was being practiced by the then Pharisees and the scribes, there was a rigid interpretation of the laws of Moses. So when they came to hear Jesus, they thought in their hearts that, "Oh, we don't commit adultery, so let us hear what this man has to say, because we are not sinners and we are clean." So they all thought that they were doing the right thing all along, whereas Jesus turns their thinking on its head by saying that adultery has already been committed if you look at a woman lustfully. Let us go back to Deuteronomy chapter 22 verse 22. In the time of Moses and the laws were given, any man, a married man who committed adultery with a woman, both of them, if caught, were to be put to death by stoning
That was the punishment. And if a man took a virgin and lay with her, and if caught, that man was to be punished in a manner that he would pay dowry to her, and if her father permitted, they would get married. So wait a minute, let us look at this difference of treatment. One person commits adultery and he is being stoned to death along with the woman, and the other person does the same thing and he gets away with just a slap on the wrist. Is there something wrong here? I think not. Because if you look carefully, the married man who commits adultery is actually breaking the covenant of marriage, the covenant of holy matrimony, which he swore before witnesses, before man and God. And he has broken that sacred covenant. And therefore, he and the woman both deserve capital punishment, the ultimate punishment. Whereas, in the case of the other man who laid with a virgin, he has made amends by paying the dowry and getting married to her if her father consents. There is a difference. He has not broken any covenant, yet it is not to be encouraged, but it is also to be condemned. And what did Jesus say about this thinking? All along, the Jews, the Judaism, the belief of the Pharisees and the scribes, and what they preach or taught in the synagogues was, adultery is a sin and it has to be met with capital punishment. But Jesus was talking about another different type of adultery. He takes the argument further by saying that if you have looked at a woman lustfully, you have already committed adultery. So in all these phrases, Jesus uses that the law says this is adultery, and then he adds, but I say unto you, that if a man has looked at a woman lustfully, he has already committed adultery. So Jesus expands the thinking of the sin of adultery, which is much more than what the Pharisees thought it was and taught accordingly. Jesus actually turns the thinking of the Pharisees on its head. In fact, why is it that when we talk about adultery, it is always looking at the man? There are two reasons. One, all these Pharisees and the scribes who were members of the Sanhedrin were married men. And they were the ones responsible for the wrong conduct of society, which Jesus talks about in Matthew chapter 23. And if that be so, why is it that only man is being blamed? I would say the interpretation of Jesus has to be understood in deeper terms. What is the punishment he suggests? He says if you look at a woman, if your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it out. If your right hand causes you to sin, cut it off and throw it out, because it is better to enter the kingdom of God with one eye or with one hand rather than the whole body being consigned to hell. So what does this mean? Why is Jesus talking about this? In those days, it was a patriarchal society. The Sanhedrin consisted only of married men. It was a qualification that if you're not married, you can't join the Sanhedrin. And most of the people, even today, are right-handed or have a better eye in the right eye as compared to the left. And therefore, he refers to the right eye to be plucked out and the right hand to be chopped off. But the underlying meaning of this is that if you commit a sin in your heart, then you have to stop yourself short, cut yourself off, and make amends and make a drastic
change over in your character, in your personality, and only then you will be accepted into heaven. The Pharisees also thought all along that Jesus was soft on the question of adultery. You will recall that when Jesus went to the house of Simon, not Simon Peter, but Simon, who had invited him to dinner, there is this adulterous woman who comes and she starts weeping and crying and washing the feet of Jesus with her tears. And in another instance, an adulterous woman is brought to Jesus by the Pharisees and scribes, saying, "You punish her because she is an adulteress." And what does Jesus say? Jesus says that let the person who has committed no sin, means the person who is pure of heart, only he alone is qualified to punish her by casting the first stone. And we all know what happened, that none of them had the courage or the conviction to stone her, because everyone had fallen short of the righteousness which Jesus wants and demands of us. So when we look into our hearts, we have to question ourselves that do we qualify to throw a stone at others, especially those who commit adultery? According to Jesus, there are three types of adultery, as opposed to what the Pharisees believed. One, of course, is the literal meaning of adultery, the physical relationship. The other is spiritual adultery, where, if you recall, St. Paul refers to them as an adulterous generation. And the third one is mental adultery, adultery in the mind. And this is the furtherance to which Jesus is taking this interpretation of adultery. He not only establishes firmly that it is wrong to commit adultery, but he takes it one level higher. And that was the purpose why Jesus came, to give the new interpretation to the law. Not the Mosaic, which was getting misinterpreted by the Pharisees and followed rigidly and blindly, but a new interpretation. That is the meaning of adultery. If we are pure in heart, which is again talked about in the beginning of the Beatitudes. Are we pure in heart? I think not, because when we look into our deeper selves, somewhere or the other we have all fallen short of the glory of God, fallen short of the standards which Jesus expects from us. That we look wantingly, lustingly at somebody or something. And that is enough to be qualified as adultery, mental adultery. There is no one who has not fallen short of the glory of God. And therefore we need to be very, very strict and disciplined, and we need to ensure that by our conduct we are pure in heart in this very important teaching of Christ. Adultery also means looking at a woman lustfully. Looking can be of different types. Sometimes you look, sometimes you stare, sometimes you look without batting an eyelid, sometimes you lock on your eyes to that person. In other words, in modern language, we may also call it as leching. See, we are surrounded by these kind of distractions that come our way. You open a magazine, you open a newspaper, you open a website, you are driving and you see a billboard. All the time, the devil seeks to entice us in wrongdoing. That is his job. But are we strong enough to look away? Do we have those kind of mental blinders on our eyes that we are not affected by what is around us? Well, we have to cultivate that and look away and have the courage and the strength and the conviction
as to what is constituting mental adultery. I also want to say that, the term adultery, because in those times it referred mostly to men, does not mean that women are exempt from this sin. I want to draw your attention to Proverbs chapter 7, where Solomon is trying to say to the young people to watch out of the temptress who will entice him with sweet words and who would drag him to hell. Coming back to Matthew chapter 5 verse 29 onwards and 30. If your right hand or your right eye cause it to sin, cut it, pluck it, throw it, disentangle from it, so that you are able to enter the kingdom of God. In the case of women also, the way some women dress, the way they walk, the way they talk, or the way they look is also enticing towards men. And therefore, no one is exempt from the sin of committing adultery in the mind, especially. And this is the interpretation which Jesus is giving us today, that we have to be pure in heart, which is the theme of today. What is the theme? The source of truth and purity is where? It is in your heart. It is in our hearts every day. When we get up in the morning, we need to ask God to give us that strength and the purity of heart, the purity of thought, so that we are shielded from temptations of the mind. There is a story about a monastic order where one of the monks, he said that I cannot get myself not to look at women because they come in front of me. So what did he do? He went off and hid himself in a cave for many days. So he shut himself off. There was nothing that he could hear, nothing that he could see or he could perceive. But yet, the mental image of the girls dancing in front of him kept coming back to him. So was he successful? That he did not commit adultery? The answer is no. So where does the answer lie? How are we to deal with this adultery business? Because every day, if we see children, we see the website, we see the movies, we see the serials on TV, it is full of this, committing adultery in one form or another, talking about it, reading about it in the newspapers or on the television. So then I would like to read what St. Paul said to the Ephesians, which was again read out to us a little while back. And I will read just the last two verses of chapter 4, which says, put off your old nature. He is addressing the Ephesians, and he pleads with them for love and holiness. Put off your old nature, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your minds, and put on the new nature, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. And that is the essence of today's meditation. Put off your old self. Cut off yourself, cut off your hand, cut off your right eye, or whatever it is that causes you to sin. Put away that paper, put away that magazine, put away that, switch off the television or the serial which you don't want to see because you feel that it is corrupting you. And you know what is right and what is wrong. Your conscience tells you that. Your teaching, your training tells you that. And therefore, if you are following that path, then hold on, pull away. Cut yourself off, wear your blinders on, and ensure that you see only the righteous,
path of purity of your heart and your thoughts and your minds and your speech. So let us examine ourselves today as we ponder over these issues and come clean so that we are more like Jesus every day, because we all have fallen short of the glory of God. We have sinned in many ways, but we need the strength of God, and let us ask God for that strength today. Shall we pray? Our dear Lord Jesus, you have opened our hearts and our minds to the thoughts you had in your heart to share the real meaning of being lustful, being adulterous. We are adulterous generation, oh Father, but give us your courage, your conviction and your strength so that we may walk in your ways and put away all wrongdoing from our hearts and our minds and cleanse our thoughts and our speech and our actions, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Let us all affirm our faith and say together, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again, in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory, to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism of the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit remain with us now and forever. Amen. Let us make the
आप सभी को जय मसीह की। आज की सुबह की आराधना में आप सभी का स्वागत है। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का आज चौथा रविवार है, जिसमें आज हमारा विषय है हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। और प्रभु का वचन हमें ऐसे बताता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह,
पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए इस प्रार्थना में आप मेरे साथ शामिल हो। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए आज की विशेष प्रार्थना को हम करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, केवल आप ही मानव हृदय को अनियंत्रित इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम सब अशुद्ध विचारों और शब्दों को अपनों से दूर करें, और जैसे आप पवित्र हैं वैसे ही हमें पवित्र बनाइए। जैसे आप सच्चे हैं वैसे ही हमें सच्चा बनाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 34वें अध्याय, उसकी 8वीं, 9वीं और 11 से 14 आयत से। अब कृपया उत्तर दें। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई, अब है, अब सदा रहेगी, युग युग। आमीन। अब मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र के पुराने नियम से पढ़ूंगी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 पद 5 से 8 तक। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 पद 5 से 8 तक। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। इफिसियों चौथा अध्याय, उसका 17 से लेकर 25 पद तक। इफिसियों चौथा अध्याय, उसका 17 से लेकर 25 पद तक। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है
उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 27 से लेकर 30 और 33 से लेकर 37 आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कृदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए ही यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वहां परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादी जय कुमार, और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से
आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है,
अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उद्धार। आसमान और जमीन में, लोगों के बीच में और दूसरा नाम नहीं है। आसमान और जमीन में, लोगों के बीच में और दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पापे उद्धार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा। आइए आज के दिन जो हम बाइबल पे मन चिंतन करने जाते हैं, तो अपने आप को प्रभु के चरणों में रखें और प्रार्थना करें कि पिता आज के वचन को हमें समझने की सामर्थ्य और बुद्धि दें, ताकि हम अपने जीवन को तेरे वचनों के अनुसार लेके चल सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रिय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, और आज के इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी आप हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से लेके चलना चाहिए। प्रभु जी हमारे जीवन में आइए और प्रभु जी हमें संभालिए, और पिता परमेश्वर अपनी सेवा के कार्य के लिए
हमारे जीवन को इस्तेमाल कीजिए। आज का वचन प्रभु जी होने दें हम सबके जीवन के लिए पिता परमेश्वर फलदायक हो, ताकि प्रभु जी हमारे इस जीवन के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे जीवन बचाए और बहुत सारे लोग प्रभु जी तुझे जानने पाए। तेरा आशीष प्रभु जी हर एक के जीवन प्रभु जी अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। और प्रभु जी जब हम मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु जी अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दें, हमारे मनों में दें, ताकि पिता परमेश्वर हम तुझे पूर्ण रूप से अपने जीवन में ध्यान कर सकें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से। जैसा कि आज हम लोगों ने पवित्र बाइबल में से बाइबल के पाठ पढ़े गए, जिसमें उत्पत्ति 6:5 से 8, इफिसियंस 4:17 से 25, मत्ती 5 उसका 27 से 30 और 33 से 37, और जिसमें आज हमारा प्रार्थना का विषय है कि हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। जब हम इस विषय पर सोचते हैं या अपना विचार करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी शुद्धता हमारे बाहरी रूप से नहीं परंतु हमारे भीतरी मन से आती है। जबकि यिर्मयाह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मन तो सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, मानो उसमें असत्य रोग लग गया। जिसे हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसके 9वें पद में हम लोग इसको देख सकते हैं। क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल होता है और तमाम जो बुराइयां इस मन से ही शुरू होती हैं। और इसके संदर्भ में खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं हमारे जीवन में सच्चाई और शुद्धता होनी चाहिए, और ये सच्चाई और शुद्धता ही हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन लेकर आती है। जबकि खुदावंद यीशु मसीह के समय में फरीसी और शास्त्री अपने आप को रस्म रिवाजों और दूसरे कार्यों में लिप्त रखते थे। वो अपने आप को बाहरी रूप से शुद्ध और पवित्र बनाए रखते थे, जबकि उन लोगों के जीवन उस थाली या उस कटोरे के समान थे, जो कि बाहर से तो साफ है लेकिन उनके अंदर बुराइयां भरी हुई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मानव जीवन के हृदय परिवर्तन के विषय में बात करते हैं कि हमारे हृदय में जो है कि परिवर्तन होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ये याद दिलाते हैं कि तू हत्या न कर, जो कि 10 आज्ञाओं में से एक है, जिस पर हमने बीते रविवार हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और आज उसी प्रकार से एक और आज्ञा है जिसमें कहा गया है कि तू व्यभिचार ना कर। ये पुराने नियम की 10 आज्ञाओं में से ये एक आज्ञा है, जिसको हम निर्गमन की पुस्तक 20 उसका 4वां अध्याय है, 4वें पद में हम लोग उसको देखते हैं। और ये आज्ञा मनुष्य की ओर से नहीं वरन ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से नहीं। और इस आज्ञा के विषय में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर बुरी नजर डाले तो वह अपने मन में उस स्त्री के प्रति व्यभिचार कर चुका है, और जो कोई व्यक्ति मानसिक रूप से व्यभिचार करता है वो वास्तव में उस कार्य के लिए दोषी ठहराया गया है। परंतु खुदावंद यीशु मसीह के अनुसार व्यभिचार जैसा अपराध हम मनुष्य के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारी सोच में ऐसी किसी प्रकार की कोई बात होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ये हमारी आंतरिक शुद्धता और अशुद्धता के विषय में जो है कि यहाँ पर बात होती है कि हम लोगों की आंतरिक शुद्धता और अशुद्धता यहाँ से पहचानी जाती है कि हमारे मनों में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, अच्छे विचार या बुरे विचार चल रहे हैं। क्योंकि जो है कि ऐसे अपराध के बारे में हम लोग कई बार न्यूज़पेपरों में ये सुनते हैं कि इस तरीके के गुनाह हो गए, किडनैपिंग हो गई है, बलात्कार हो गए हैं, और तमाम प्रकार की जो है कि ऐसी बुरी बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है, जो कि एक मानव जीवन के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं
कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के कथन के अनुसार वे हमें ये बताना चाहते हैं कि यदि हमारी आंख अपराध की वजह है तो उसे हमें अपने शरीर से अलग कर देना चाहिए, और यदि तेरा हाथ पाप करे तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि यदि हमारे अंदर इस प्रकार की कोई बुराई है तो उसे हमें अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। क्योंकि इसका अर्थ जिसमें हम लोग देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि हमें उस मूल कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए जो कि हमें पाप की ओर लेके जाता है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन से पाप को या किसी बुरी आदत को जड़ से खत्म नहीं करते हैं तो हम लोग पाप पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और हम सबको चाहिए कि हम लोग इन सब गलत आदतों का, गलत बातों का, गलत विचारों का हम सबको विरोध करना चाहिए, और यही हमारे जीवन के लिए अच्छा और भला है। क्योंकि पाप की शुरुआत हमारे मनों से ही होती है। इसलिए वचन हमें बताता है कि जो चीज हमारे मुंह से होकर हमारे पेट में जाती है वे इंसान को शुद्ध या अशुद्ध नहीं करती है, परंतु जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है वह हमारे मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि जैसे हम लोग देख सकते हैं कि बुरे विचार, हत्या करना, पर स्त्री गमन, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठी गवाही देना और दूसरों की निंदा करना, ये सब बातें हमारे मन से ही निकलती है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। यदि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के उसके 18 से 19वें पद में यदि हम लोग देखते हैं तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि यहाँ लिखा है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। इसलिए जो है कि हमें जरूरत है अपने आप को कंट्रोल करने की, अपने मन को जो है कि संभालने की, क्योंकि हमारा मन जो है हमें कई बार जो है कि गुनाह की ओर लेके जाता है। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, क्योंकि जब तक कोई मनुष्य ये महसूस नहीं करता है कि वह पापी है और उसे उद्धार की जरूरत है, तब तक वह बचाया नहीं जा सकता। क्योंकि हमारे जीवन तो पाप से भरे हुए हैं और हमें जरूरत है कि हम अपने संसारिक और पापमय जीवन से प्रायश्चित करने के, क्योंकि हमारा ये पापमय जीवन तमाम बुराइयों से भरा हुआ है, जिसमें हम बुरी चीजें हम लोग पाते हैं, हमारे विचार हैं, हम लोग गलत काम करते हैं, हम लोग व्यभिचार करते हैं, हम लोग चोरी करते हैं, हम लोग झूठी गवाही देते हैं, हम लोग क्रोध करते हैं, हम लोग निंदा करते हैं, हम लोग एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये सभी चीजें हमारे बाह्य जीवन और हमारे आत्मिक जीवन दोनों को ही ये नुकसान पहुंचाती है। जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन हमने अपने बुरे विचारों, बुरे कामों से और तमाम प्रकार की बुरी बातों से इस मंदिर को हम लोगों ने गंदा कर दिया है, जिसे हमें साफ करने की बहुत जरूरत है। यदि हम इन बातों पर विचार करें कि हम अपने जीवन में क्या पाते हैं, यदि हम लोग जांचने की कोशिश करेंगे तो हम लोग अपने जीवन में पाएंगे कि हम जो है कि सत्य के मार्ग को छोड़कर हम लोग असत्य के मार्ग पर हम लोग चल पड़े हैं, और ये हमारे जीवन में ये परमेश्वर से ये दूर करने के कारण है। जब हम लोग इन चीजों में लिप्त हो जाते हैं तो हम लोग परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जब हम लोग परमेश्वर से, जब हमारे जीवन परमेश्वर से दूर हो जाते हैं या परमेश्वर से अलग हो जाते हैं,
तो परमेश्वर हमारे जीवन में, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारा सारा जीवन अंधकार में हो जाता है। अंधकार में होने के कारण हम लोग अपने जीवन में हम लोगों से बुरे बुरे काम हम लोगों के जीवन में होने शुरू हो जाते हैं। यदि, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यदि ये तमाम बुराइयां हमारे अंदर है तो हमारे अंदर अज्ञानता आ जाती है, बुरे सोच, बुरे विचार ये हमारे अंदर उत्पन्न होने लगते हैं, हमारे मन कठोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्रोध और गुस्सा और हमारे जो है कि आपसी हम लोगों के बीच में मनमुटाव होता है और हम जो है कि बुरे काम करने लगते हैं। और ये बुरे विचार और बुरे काम ये हमारे जीवन में घर कर जाते हैं। इसलिए जो है कि हमें ज़रूरत है परमेश्वर की और अपने जीवन को लेके आने की। जैसा कि आज हम लोगों ने इफिसियों की पत्री में उसका 4 अध्याय उसके 17 से 24 में पढ़ा, तो यहाँ पर जो है कि क्लियरली जो है कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनंत रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी के सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम लोग पुराने जीवन को हम लोग खत्म करें, जो हमारे जो पुराने जीवन जो है बुराई से भरे हुए हैं, इन जीवन को जो है कि हमें खत्म करने की जरूरत है। और जो है कि परमेश्वर का वचन जो है कि हमें सिखाता है कि जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, अपने जीवन को हमको किस प्रकार से जो है कि आगे लेकर जाना चाहिए। यदि हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो हमसे जो है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम लोग परमेश्वर से जो है कि प्रार्थना के द्वारा बात करते हैं। हम लोग जो है कि जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि पिता हमारे जीवन को तो शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि जैसा कि वचन में हम लोगों ने देखा कि दाईं आंख का जो माध्यम है वो इस बात को प्रस्तुत करता है कि जिसके द्वारा लालसाएं हमारे मन में प्रवेश करती है। क्योंकि हम लोग जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे अंदर जो है कि बुरे विचार, बुरे काम, ये चीज़ उत्पन्न होते हैं और हम लोग जब जो है किसी और हमारे अंदर जो है कि तमाम प्रकार के जो है कि लालच उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो है कि आंखों के द्वारा बुराइयां हमारे मन के अंदर प्रवेश करती हैं। और हम लोग साफ साफ देखते हैं कि दाएं हाथ के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। दाएं हाथ हमारे शरीर के उस अंग को प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा हम लोग पाप करते हैं। इसलिए यदि हमारी आंख, हमारे हाथ हमें पाप की ओर लेके जाते हैं तो इससे बेहतर यही होगा कि उसको हम लोग अपने शरीर से क्या कर दें, अलग कर दें। वरन कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी आत्मा को गंवाने की अपेक्षा हम लोगों को इन बुराइयों को अपने जीवन से दूर करना बेहतर है। अर्थात यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ हमारे जीवन के लिए ठोकर का कारण है उसका हम लोग त्याग करें। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आगे कहते हैं कि हमारे जीवन में जब बुराई आती है तो हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है, जिससे हम अच्छा और बुरा हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जैसा हम सोचते हैं कि आगे मैदान है, लेकिन हम लोग अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है कि हमें खाई दिखाई देती है, जो कि हमारे जीवन के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक चूहे को फंसाने के लिए हम लोग चूहेदानी के अंदर एक रोटी का टुकड़ा लगाते हैं,
जो उसके लिए वो आकर्षण का केंद्र होता है। और जैसे ही वो उस टुकड़े को पकड़ता है तो वो उस पिंजरे के अंदर फंस जाता है या बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अपने संसारिक जीवन है, वो संसार की जो बुराइयां हैं हमें इसी प्रकार से जो है कि इस आकर्षण में हम लोगों को फंसाती है और हमारे जीवन जो है कि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए जो है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपने जीवन को, अपने हृदय में, अपने हृदय को जो है कि इसमें परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पौलुस भी अपने इफिसियों की पत्री में यहाँ पर वो बड़ा उसने जो है कि बहुत ही हमें क्लियर बताया है और इस पत्री के द्वारा जो है कि वो हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें मसीह की शिष्यता ग्रहण करने के लिए अपने मन और अपने हृदय को परिवर्तन करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग अपने जीवन की ओर ध्यान दें कि हमारा जीवन किस ओर जा रहा है। यदि हम लोग अपने जीवन की ओर ध्यान देंगे, उसको जो है कि जांचेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि जो है कि इस जीवन के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं और उस बुराई को जो है कि खत्म करने की हमें आज ज़रूरत है। और ठीक इसी प्रकार हम लोग इसका दूसरा हिस्सा हम लोग देखते हैं जहाँ पर बताया गया है कि शपथ ना खाना, क्योंकि इसके बाद जो है कि खुदावंद यीशु मसीह उन वायदों का जिक्र करते हैं जो हम अपने जीवन में कई बार एक दूसरे से करते हैं और कई बार हम लोग जो है कि इन वायदों को परमेश्वर के साथ भी हम लोग करते हैं और उन वायदों को हम लोग सिर्फ करते तो हैं लेकिन उसको अपने जीवन में उसको पूरा नहीं करते हैं। इसके लिए जो है कि पुरानी नियम में हम लोग देखते हैं कि व्यवस्था के अनुसार जो है कि यहाँ पर बताया गया, यदि कोई व्यक्ति वाचा बांधने के लिए शपथ खाता है और उसको पूरा करने की जिम्मेवारी भी उसी की होती है कि वो व्यक्ति उस प्रतिज्ञा को पूरा करे जिसकी उसने शपथ खाई है। क्योंकि इसके विषय में गिनती की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसके दूसरे पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वचन में बंधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन ना टाले और जो कुछ उसके मुंह से निकलता है उसके अनुसार वह उसे पूरा भी करे। व्यवस्था विवरण पुस्तक उसका 23 उसका 21वें पद में यदि यहाँ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति इसको टालता है तो वह पापी ठहराया जाएगा। जबकि खुदावंद यीशु मसीह के समय में यहूदी लोगों का यह मानना था कि जिस शपथ में परमेश्वर का नाम का उल्लेख ना हो उसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहूदी लोग अपनी शपथ को टालने के लिए अपनी शपथ में वो परमेश्वर का नाम को वो नहीं लेते थे, इसकी बजाय वो स्वर्ग या पृथ्वी या यरूशलेम की शपथ खाते थे। जबकि वह इस बात को भूल गए थे कि स्वर्ग जो है परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, जिसके विषय में हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66वां अध्याय उसके पहले पद में, प्रेरित उसका 7 उसका 49वें पद में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इन सब की शपथ खाना परमेश्वर की शपथ खाने के बराबर था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें बिल्कुल भी शपथ खाने की जरूरत नहीं है, फिर वो चाहे किसी नाम की शपथ हो, किसी वस्तु की शपथ हो या फिर हमारे अपने सर की शपथ हो, हमें ये शपथ नहीं खानी चाहिए। क्योंकि कई बार लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की शपथ को खाते हैं या इस प्रकार की प्रतिज्ञा को लेते हैं। क्योंकि यदि हम सच्चे हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई शपथ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की शपथ शैतान की युक्तियां होती हैं जो हमें बुराई की ओर और परमेश्वर से हमें दूर लेकर जाती है। और इस प्रकार की कमियां हमारे अंदर पाई जाती है कि हम बात बात पर हम लोग कस्में खाते हैं। हम लोग कस्में खाते हैं खुदा की, हम लोग कस्में खाते हैं अपने सर की, हम लोग कस्में खाते हैं अपने माँ बाप की, हम लोग कस्में खाते हैं अपने भाई बहनों की। हमें जो है कि ये याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई शपथ खाना ये शैतान की युक्तियां हैं। इसलिए शैतान की युक्तियों से हमें अपने जीवन को बचाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो है कि हमें
शैतान की तमाम इन युक्तियों से बचने के लिए हमें अपनी सामर्थ प्रदान करता है। इसलिए याकूब अपनी पत्री में उसका 5 के 12वें पद में हम लोग देखते हैं, वो कहता है कि हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तु की, और तुम्हारी बातचीत हाँ कि हाँ और ना कि ना होनी चाहिए, ताकि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि उनके शिष्य होने के कारण हमारी विश्वास योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमारी बात पर विश्वास करें और हमें सही को सही और गलत को गलत ही कहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में सदा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह शैतान की ओर से होता है। इसलिए याद रखिए कि एक झूठ हमसे 100 झूठ बुलवाता है और सत्य हमें 1000 झूठ से बचाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सत्य है। क्योंकि वचन में लिखा भी गया है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा मार्ग है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा जीवन है और खुदावंद यीशु मसीह की सत्य है। इसलिए उनकी शिक्षाओं को, उनकी आज्ञाओं को हम लोग कभी भी ना भूलें, वरन उसको अपने जीवन में थामे रखें। आज के दिन जो है कि 2 भागों में हम लोग खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि जो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में शुद्धता और सच्चाई को बनाए रखने के लिए हमें अपने हृदय में शुद्धता और सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, उसे अपने हृदय को बदलने देंगे। क्योंकि हम लोग जो है कि अपनी दुआओं प्रार्थना हम लोग सब कुछ मांगते हैं, लेकिन हम लोग जो है कि उस पवित्र आत्मा को हम लोग नहीं मांगते। हमें जो है कि इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगने की जरूरत है, क्योंकि वह हमारे हृदय को, हमारे जीवन को बदलता है और वो हमें अपने जीवन में बहुत आयत की सामर्थ देता है। और ये हमारे पापपूर्ण स्वभाव के कारण हम लोग इस चीज को हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारे जीवन में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम लोग अपने जीवन को बदल सकें। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे हृदय में, मन में पवित्र आत्मा को वास करने दें, ताकि हम सच्चाई और पवित्रता से चल सकें और हमारी कमजोरी के पलों में पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दे और परीक्षा की घड़ी में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने सहायक वहाँ भेजा हुआ है जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे बीच में हमेशा उपस्थित रहता है। क्योंकि जो है कि हम लोग देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ हर समय वो कहता है कि हर समय मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। इसलिए जो है कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबको प्रदान करें, ताकि हमारा हृदय परिवर्तन हो सके और हमारा जीवन पवित्र और शुद्ध हो सके, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण हो, हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण हो। आइए हम लोग इस वचन को, उससे पहले मैं आपको एक कहानी के द्वारा मैं करना चाहूँगा। एक जो है एक धार्मिक व्यक्ति था, बड़े अपने जीवन में बड़े काम करता था, वो जरूरतमंदों की मदद करता था, वो बहुत ही ज़्यादा लीन था। उसके विपरीत एक बुजुर्ग महिला थी, जिसका स्वभाव उस व्यक्ति के बिल्कुल ही विपरीत था। उसके अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां थी। वो हमेशा उस सज्जन पुरुष को, जब वो उसके वहाँ से निकलता था तो उसको बुरा भला कहती थी, उसको गालियाँ देती थी, उसके बरताने कसती थी, और जो है कि और कई बार जो है कि वो अपने घर का कूड़ा उस व्यक्ति के ऊपर क्या कर देती थी, फेंक देती थी।
लेकिन ये भला मनुष्य कभी उसको कुछ नहीं कहता, वो हंसकर चुपचाप वहां से निकल जाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो व्यक्ति उस घर के आगे से निकलता था तो वो जो है कि कूड़ा फेंकना बंद हो गया, उस व्यक्ति को बुरा भला कहना बंद हो गया। वो महिला जो उसको उसके लिए जो है कि बुरी बात बोलती थी वो सब कहना बंद हो गया। उसके मन में विचार आया कि ये क्या हो कि जो है कि वो महिला वो जो है कि उसने खोजने की कोशिश करी। उसने देखा तो जो है कि उसके घर में ताला तो नहीं था, लेकिन वो बुजुर्ग महिला अपने बिस्तर पर बीमार थी, उसके पास में कोई नहीं था। वो व्यक्ति उस बुजुर्ग महिला के पास गया, उसने उसका हाल चाल पूछा और जो है कि उसको जो है कि उसका हाल चाल पूछा, उसकी सेवा करी और साथ के साथ उसके हाथ में पैसे रखे। उसको कहा कि अपने ज़रूरत जो तुम्हें ज़रूरत हो इससे तुम पैसों का जो है कि इस्तेमाल कर लेना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसा ही उसने वहाँ पर रखा तो वो बुजुर्ग महिला थी, उसने जो है कि उस व्यक्ति को कहा कि उसको रोई और उस व्यक्ति को कहा कि हे मेरे भाई, मुझे क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया और तुम पर जो है कि ताने कसे, यहाँ तक कि मैंने अपने घर का कूड़ा कट तुम पर फेंका। और उस महिला ने जब इस तरीके से कहा तो उस व्यक्ति ने उस महिला के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि हे मेरी बहन, अपना मन छोटा मत कर, क्योंकि मैं तो हमेशा से परमेश्वर से ये प्रार्थना करता था कि तुम मन और हृदय से बदल जाओ। और हम लोग देखते हैं कि उस दिन से ही उस महिला का जीवन बदल गया। यही जो है जीवन है जो कि हमारे जीवन को बदलता है और हमारे जीवन का जीने का जो अभिप्राय है वो यही होना चाहिए कि हम किसी के जीवन को बदल सकें। और जो कोई आत्मा और हृदय से अपनी गलती को स्वीकार करता है, इससे बढ़कर हमारे जीवन में और कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि खुद के लिए जीवन जीना क्रिस्तीय स्वरूप नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी भी जो है कि अपने लिए जीवन नहीं जिया, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मरकुस 10:43 पद में, वो कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि मेरी सेवा टहल की जाए, परंतु मैं इसलिए आया कि मैं दूसरों की सेवा टहल कर सकूं और बहुत से लोगों की मुक्ति के लिए अपने प्राण को। और पौलुस जो है कि फिलिप्पी के पत्र उसका 2-4 पद में लिखता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हितों की भी चिंता करनी चाहिए। जबकि वास्तविकता और सच्चाई ये है कि हमने अपने जीवन को सदा ही दूसरों को बुरा भला कहने में व्यतीत किया है। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं।
वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सागर में ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और
यीशु आया